पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से संबंधित हमने चर्चा की थी और उसमें मुख्यतः हम लोगों ने वेबेराना ट्राइब के बारे में चर्चा की थी, न्यूलैंड्स और टेबल रूट के बारे में चर्चा की थी और फिर मैथलिक पीरियोडिक लॉ यानी उसके टेबल के बारे में चर्चा की थी, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की चर्चा हमने की थी। और फिर हमने कहा था कि फिर इसमें जो मेरिट्स डिमेरिट्स जो थे मैथलिक पीरियोडिक टेबल में उसको दूर करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना और वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर आधारित है, जिसको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था। यहाँ पर फिर से मैं बता दूँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ properties of elements are the periodic function of their atomic number. That means when we arrange the elements in increasing order of atomic number, then the elements have similarity in their physical as well as chemical properties, and they are kept in one group. The elements which are identical in their properties are kept in one group. So here you will see that there are 18 groups and 7 periods. The modern periodic law. Once again, modern periodic law. Properties means physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. So this is modern periodic law. Now if we see there are 18 groups. The vertical column are called groups and horizontal row are called periods. So there are 7 periods: first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. So there are 7 periods and 18 groups. And 18 groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 and 18 groups. You may see the periodic table, modern periodic table, given in your book, in NCERT book and all other books. तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स की संख्या है अलग अलग पीरियड में, उसकी संख्या है 2, 8, 18, 18, 32 and remaining elements. So there are 2 elements in first period. One is hydrogen, another is helium. You can see in your periodic table. So there are 2 elements in first period, and in second there are 8 elements in third period, 8 elements in fourth period, 18 elements in fifth period, 18 elements in sixth period, 32 elements, and in seventh period there are remaining elements are in 7 period. So there are 7 period in modern periodic table and 18 groups. So in first group, helium, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So these are the elements of group 1. Group 2, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These are the elements of group 2. Similarly, we can see group number 18, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. 17, fluorine, bromine,
Here is fluorine, chlorine, bromine, iodine, statistics. So these are the elements of group 1, group 2, group 17 and group 18. And you may see similar 18 groups and the elements in 18 groups. Now here we can see that these elements, lithium, sodium, potassium, cesium, calcium, magnesium, calcium, sodium, radium, all are metals. So the elements on the left side of the periodic table are metals and the elements on the right side of the periodic table are non-metals. बाएं तरफ जो एलिमेंट है वो मेटल है और दाएं तरफ जो है वो नॉन मेटल है। और आप बुक में जब देखेंगे तो एक zigzag लाइन है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, वो मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करता है, मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से अलग करता है। और वो दोनों जो बॉर्डर पे हैं, जो दोनों को अलग करते हैं, उनका गुण दोनों से मिलता जुलता है, मतलब वो दोनों से हेल्प में रखे हुए हैं। वो मेटल के साथ भी रहते हैं, नॉन मेटल के साथ रहते हैं, मतलब कुछ बिहेवियर उनका मेटल के जैसा होता है और कुछ बिहेवियर उसका नॉन मेटल के जैसा होता है। जैसे दो देशों के बीच के बॉर्डर पे जो व्यक्ति रहता है वो इधर की भी भाषा बोलता है और दूसरे देश की भाषा को भी आसानी से बोलता है, मतलब वहाँ पे मिक्स कल्चर होती है। तो यहाँ पे तो देखेंगे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड गैलियम, और सबके कलर अलग किए हुए हैं। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो मेटल्स के लिए अलग कलर है और नॉन मेटल्स के लिए अलग कलर है, पीला, नॉन मेटल्स के लिए पीला है, और इधर के लिए मेटल्स के लिए जो है वो ग्रीन है, और बीच में ऑरेंज कलर के जो है वो मेटलाइट्स है, जिसका नाम हमने लिया। जो मेटलाइट्स जो है वो सीधा नहीं है, इस तरह से कर्व ये है, टेढ़ा मेढ़ा है, zigzag लाइन है। और उसके अंतर्गत बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। तो ये क्या करते हैं, ये मेटलाइट्स कहलाते हैं। तो इधर वाले क्या हो गए, मेटल्स, इधर वाले क्या हो गए, नॉन मेटल्स, और ये बीच में जो ये हो गए कौन बोरॉन, these are metals। ये क्या है, और क्या आएगा इधर, और इधर से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम, इसके राइट साइड पे जो होंगे वो जाएंगे नॉन मेटल्स। क्या होंगे, नॉन मेटल्स। और ये जो होंगे जो ये दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, जो दोनों को अलग करते हैं, वो एक zigzag लाइन है, उसके अंदर आते हैं बोरॉन के बाद में आ जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम। These are metalloids। तो हमने क्या देखा, बाएं तरफ के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, मेटल, दाएं तरफ के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल इसके पहले हम लोगों ने पूरे डिटेल से पढ़ा है। मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको क्या कहते हैं, मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, नॉन मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 3 में। और जो दोनों का रूप रखता है उसको लोग मेटलाइट्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और यही लाइन जो है वो दोनों को अलग करता है, दोनों को बांटता है। अब इतना खूबसूरत है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो भी त्रुटि थी मेटलिक के पीरियोडिक टेबल में, वो सारे के सारे जो त्रुटियां थी वो क्या हुई, इससे दूर हो गई। जैसे एक दो त्रुटियों को लेता हूं। सबसे पहले जो परेशानी थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। तो हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ भी और इसके साथ भी दोनों में रखता था। ये हाइड्रोजन है और ये अल्कली मेटल्स है, तो दोनों के साथ दोनों में समानता रखता था। लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर के आधार पर रखेंगे तो क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है
इसीलिए इसको हमेशा 1 में ही रखेंगे। फिर इसका कितना है 2, फिर इसका कितना है 3, 4। इस प्रकार से हमने कैसे सजाया है एलिमेंट्स को मॉडल पीरियोडिक टेबल में in increasing atomic number, in order of increasing atomic number, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में हमने इसको सजाया है। ये प्रश्न दूर हो गई। दूसरी, अब जो आइसोटोप्स के बारे में था कि आइसोटोप्स में जैसे H11, H12, H13 सबका मास अलग था, तो इनको साथ में कैसे रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर सबका जो एटॉमिक नंबर कितना है सेम है, 1 ही है, तो सारे आइसोटोप्स को एक ग्रुप में आराम से रखा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये दूसरी त्रुटि दूर हो गई। एक था कोबाल्ट और निकेल वाली बात। कोबाल्ट और निकेल में कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा था निकेल से, लेकिन इसको पहले रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो जब देखते हैं तो यहाँ एटॉमिक नंबर जो है कोबाल्ट का निकेल से कम है, इसलिए कोबाल्ट पहले आता है, लेकिन उसका हर्ज नहीं है। इसी प्रकार से हम देखेंगे आर्गन और पोटेशियम के केस में आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19 होता है, तो आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा होने के बावजूद जो है वो पहले रह सकता है, क्योंकि इसको हमने कैसे सजाया है एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो अब इसकी जो है बहुत सारी खूबियां हैं। इस पीरियोडिक टेबल के माध्यम से आप पूरी केमिस्ट्री पर कमांड बना सकते हैं। इसको अगर बढ़िया से आपने देख लिया और एक पीरियोडिक टेबल आप या तो अपने कॉपी से किताब से उसका कॉपी करके पेस्ट कर दिया और थोड़ा बहुत अगर बीच बीच में जब फुर्सत मिले ऐसे ही देख लिया एक लुक, तो आपको पूरी केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी और पूरी जो है आपकी पकड़ काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी हम देखेंगे क्या खासियत है इस टेबल का। तो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए 7, नंबर ऑफ पीरियड्स 7, नंबर ऑफ ग्रुप्स 18। सो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स नदी के तो ये होगा कंटेक्स्ट। नाउ हम लोग लिख सकते हैं ये मेटल्स हो, इधर वाले मेटल्स हो, उधर वाले मेटल्स हो गए, बीच में मेटाइड हो गया, ये हमने देख लिया। अब नंबर ऑफ पीरियड्स 7, नंबर ऑफ पीरियड 7, और इस पीरियड में जो एलिमेंट की संख्या है वो कितना है 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड शेष मींस रिमेनिंग। दैट मींस इन फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, और जो शेष बच गया जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो किस पीरियड में है 7 पीरियड में। तो आसानी से आप बता सकेंगे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट 2, सेकंड में कितने 8। अभी लीजिए पीरियड टेबल आप निकालिए उसको देख लीजिए। फर्स्ट में 2 मिलेगा आपको हाइड्रोजन और हीलियम, और सेकंड में जो है लिथियम बेरिलियम से लेकर के बोरोन है, उसके बाद में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फिर गैस फ्लोरीन है। इस प्रकार से और फिर लास्ट में नियॉन है। 8 एलिमेंट है सेकंड पीरियड में, आप देख सकते हैं सेकंड पीरियड में लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन और नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में। आप देखेंगे थर्ड में कितने हैं, थर्ड में भी 8 ही हैं। क्या है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन। तो थर्ड में भी जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं। उसी प्रकार से आगे जब बढ़ेंगे तो फोर्थ में आप देखेंगे 18 एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड का 18 एलिमेंट है, सिक्स्थ में जो है 32 एलिमेंट्स हैं। लेकिन सिक्स्थ में आपको वहां डिजिट मिलेगा 18 एलिमेंट ही मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 57 लेंथेनम। तो लेंथेनम के बाद से सीधा जो है वो नीचे लिख दिया गया है 58 से लेकर 71 तक, और उसका प्रॉपर्टी जो है वो लेंथेनम से मिलता जुलता है, इसीलिए उसको लेंथेनाइड्स कहते हैं। तो बीच में जो 14 एलिमेंट है 18 तो आपको मिल जाएंगे 6 पीरियड में, और 14 एलिमेंट जो था जो लेंथेनम से मिलता जुलता था, और लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर 57 है, तो 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट्स जो हैं 14 एलिमेंट जो हैं वो बॉटम में
रख दिए गए हैं। आप देख लीजिए नीचे में जो है सो लिखा हुआ है 58 से लेकर के 71 तक। तो कुल मिलाकर के 18 14 कितना हो गया 32 एलिमेंट्स। तो देयर आर 32 एलिमेंट्स इन 6th पीरियड। तो 6th पीरियड में कितने हैं 32 एलिमेंट है। उसी प्रकार से आप आगे देखेंगे 7th में एक्टिनियम एलिमेंट एक्टिनियम है उसका है 89। तो 89 के बाद 90 से लेकर के 103 तक आपके किताब में दिया हुआ है सब आगे। तो उसमें से जो है एलिमेंट जो शेष है जो आ रहा है इसका रिसर्च हो रहा है उसको उसमें जोड़ा जा रहा है। तो जितने भी बचे हुए एलिमेंट हैं वो 7th पीरियड में रहेंगे, 7th पीरियड में रहेंगे 7th पीरियड में। तो वहां पे भी जो है एक्टिनियम से मिलता जुलता जो एलिमेंट है उसको नीचे में बॉटम में लिखा गया है टेबल के नीचे में, उसको बोलते हैं एक्टिनाइज। तो दो अलग हो गए लेंथेनाइज एंड एक्टिनाइज। लेंथेनम के बाद में जो है लेंथेनम से मिलते जुलते जो एलिमेंट है उसको लेंथेनाइज बोलते हैं और जो एक्टिनियम से मिलते जुलते गुण वाले एलिमेंट्स हैं उसको एक्टिनाइज कहते हैं। तो वहां पर आपके पीरियोडिक टेबल में सारा चीज नीचे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कितनी है। अब ये कितना खूबसूरत है इसका पीरियोडिक टेबल में जादू की तरह इसको आप देख सकते हैं। जैसे हार्डवेयर का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब इसमें 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 3, इसमें 1 जोड़िए 11, इसमें 1 जोड़िए 19, इसमें 18 जोड़िए 37, इसमें 18 जोड़िए 55, इसमें 32 जोड़िए 87। These are the atomic numbers of the elements of group 1। यह है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट पीरियड्स। और यहाँ पर डिफरेंट पीरियड्स में जो नंबर है उसको जोड़ करके हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। जैसे आगे का 1 हुआ 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 18 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 में 32 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। इस प्रकार से आप एटॉमिक नंबर बिना याद रखे इसको निकाल सकते हैं। अब क्या हो गया हम पीरियड में अगर जाएंगे तो और इजी हो गया एटॉमिक नंबर निकालना। क्यों? क्योंकि हमने जो एलिमेंट्स को सजाया है किसके आधार पर सजाया है बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में। एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है उस प्रकार से हमने सजाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो इफ एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 क्या जाएगा 12 यहाँ 13 यहाँ 14 यहाँ 15 यहाँ 16 यहाँ 17 यहाँ 18 40। इस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 याद नहीं तो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ है हीलियम का 2 में 8 जोड़िए 10 में 18 36 और फिर आगे 32 जोड़िए तो ये जो है आ जाता है मेरा 17 करके ये आ जाता है। तो इस प्रकार से हम एटॉमिक नंबर किसी का भी निकाल सकते हैं। और जो बात यहाँ पे बोला जा रहा है उसको ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे मेटल, और राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे नॉन मेटल। बीच के जो है जिसका नाम मैंने बताया बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कैडमियम एंड पोलोनियम दीज आर मेटलॉइड्स। ये क्या होंगे मेटलॉइड्स होंगे। अब क्या खासियत है हम देखेंगे पीरियड में। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन ए पीरियड। मतलब एक पीरियड में अलग अलग प्रॉपर्टीज किस प्रकार से वैरी करता है, किस प्रकार से परिवर्तित होता है, किस प्रकार से बदलता है उसको देखेंगे। बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर थर्ड पीरियड देखें कौन सा पीरियड थर्ड। तो थर्ड पीरियड में आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन,
आर्गन 1 2 3 4 5 6 7 सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन देन फास्फोरस देन 60 सल्फर देन क्लोरीन देन आर्गन. Now A1 2 3 4 5 6 7 8 there are 8 elements in third figure. We have already studied about this. 2 8 8 18 32 and remaining. So just with 8 elements in third figure. So these are the elements in third figure: sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Now you will see the total number is 12 13 14 15 16 17 and this is your 18. This is inert gases. So हम लोग को ज़्यादा मतलब सोडियम से लेकर क्लोरीन तक का ये इनर्ट है, ये प्रतिक्रिया में जल्द भाग नहीं देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को जाना नहीं है. तो सदस्य देखते हैं. अब इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे. 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 and 2 8 7. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया. अब इसको जो हम दिखाएंगे यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस और इसके हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट और ये हो गया थर्ड ऑर्बिट. थर्ड पीरियड है तो 3 ऑर्बिट होगा, सेकेंड पीरियड है 2 ऑर्बिट होगा, फोर्थ पीरियड है 4 ऑर्बिट होगा थर्ड ऑर्बिट में. तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे के जो 2 सेल है वो सेल होंगे 2 8, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिट में कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे. अंदर में वही रहेगा 2 और 8 रहेगा, 2 और बाहर में बढ़ गया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ ये यही रहेगा, ये भी यही रहेगा, ये बदल जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. उसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएंगे. क्लोरीन के पास जब आएंगे तो ये अंदर में 2 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि इस बाकी जो अंदर के जो 2 सेल है सब में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक पीरियड में, जितने एलिमेंट होंगे थर्ड पीरियड में. और आउटमोस्ट एलिमेंट में इसके पास 1 इसके पास 2 इसके पास 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते इसके पास में आउटमोस्ट एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. ये आप 9 में पढ़ा चुके हैं. ठीक है, अब बहुत आसान है. अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है, क्योंकि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं. इसीलिए एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है. मतलब एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं. तो यहाँ पर अगर इसके पास में 17 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 है. इसके पास में 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है. अब यहाँ क्या देखते हैं, इसके पास में कितने प्रोटॉन 11, इसके पास 12, इसके पास 13, इसके पास 17 प्रोटॉन है. और प्रोटॉन पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज. तो जब यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा. क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा बढ़ेगा. और जब इलेक्ट्रॉन पर जो है
वो फोर्स बढ़ेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितना भी फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, उतना सिकुड़ जाएगा, तो ये साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये जो एटॉमिक रेडियस है वो घट जाएगा, यानी एटॉमिक साइज जो है सो घट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज इन ए पीरियड along left to right। मतलब जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो एटॉमिक रेडिया क्या होता है, घटता है, अर्थात एटॉमिक साइज घटता है। इसलिए ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहा है। इसके पास 11 है, इसके पास कितना है, 17 है, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो सेल है वो सब में 3 ही है, 1 2 3, तो अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज क्या हो गया, छोटा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये जो एटम का साइज है वो क्या होगा, घटेगा। दैट मींस एटॉमिक साइज डिक्रीज। अब आपको ये पूछेगा कोई, बताओ एल्युमिनियम का एटम बड़ा होगा या फास्फोरस का, तो आप कौन बताएंगे, एल्युमिनियम का, क्योंकि हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है, तो फास्फोरस का छोटा होगा, एल्युमिनियम का बड़ा होगा। अगर पूछेगा कि बताओ मैग्नीशियम का एटम बड़ा होगा साइज या सल्फर का, तो आपका जवाब क्या होगा, मैग्नीशियम का। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये था एटॉमिक रेडिया के बारे में, साइज के बारे में। अब आगे देखते हैं सेकंड है। अगर हम लोगों ने देखा लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट वो क्या मेटल है, दाएं साइड पे जो एलिमेंट वो क्या है, नॉन मेटल है, तो मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये भी लिख सकते हैं, मेटलिक कैरेक्टर decreases along a period from left to बाहर से दाएं जाते हैं। मेटलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है along a period from left to right। तो यहाँ पर अगर नॉन मेटलिक कैरेक्टर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद हमने देखा है कि ये जो मेटल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज along a period from left to right। और इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा हमने देखा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, रेडियस घटता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता है, मेटलिक कैरेक्टर घटता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और एक है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसको ये है कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देना पड़ता है उसको वो बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको लिखेंगे एनर्जी
required to remove one valence electron one valence electron from energy required to remove one valence electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। आइसोलेटेड मतलब अलग किया हुआ, गैसीय मतलब गैस के रूप में जब एटम पहुंचता है तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब ऑटोनॉमस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ क्या देखते हैं कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन होगा, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज along a period from left to right। तो अब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी लगता है। आसान किसको निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा, इसीलिए कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये मेटल जो होते हैं या बाहर जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये था पीरियड में। अब हम लोग देखेंगे एक ग्रुप में रेडिएशन ऑफ जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे बदलता है। उसके बाद में इसमें वैलेंसी के बारे में भी हम लोग जानकारी लेना चाहता कि वैलेंसी क्या करता है, डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। तो वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है और 4 से घट करके 0 हो जाती है। वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 and then decreases from 4 to 0 in a period from left to right। मतलब 4 तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4 तक होती है, 1 से लेकर 4 तक। उससे ज्यादा का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 8 में उसको घटा करके हम निकाला जाता है वैलेंसी। जैसे क्लोरीन का परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1। और आर्गन में 8 है, 8 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। तो वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ता है और फिर घट करके कितना जाता है, 4 से 0 हो जाता है। इसमें एक पीरियड में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं आप देखेंगे बड़ी जो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। क्यों, क्योंकि इनके ऑक्साइड अल्कलाइन होते हैं। सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके जो अल्कलाइन होते हैं और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन are called elements of halogen family. तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसको हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट कहा जाता है। उसके बाद में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आर कॉल्ड नोबल और ये नोबल गैस हाइड्रोजन गैस कहलाते हैं, ये गैसीय होते हैं, ये रिएक्शन भाग नहीं होते। अब रेडिएशन प्रॉपर्टीज का एक ग्रुप में कैसे प्रॉपर्टीज वैरी करते हैं उसको हम देखेंगे। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को देखेंगे और बहुत सारे देखेंगे इस प्रकार से ये जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे वैरी करता है। तो हम देखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका हो गया 3, 11, 19, 37, 85, 87। तो इसका हम देखेंगे कैलकुलेशन लिथियम का 21, 21, 281, 2881। इसके बाद आगे इसमें 2 सेल क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में 3 सेल, फोर्थ पीरियड में 4 सेल और जितना पीरियड बढ़ते जाएगा सेल की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। अब इसको हम लोग देखेंगे ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। इसके सोडियम के केस में ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम में देखेंगे ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक लेब में एक मूल व्यक्ति बता सकता है कि इसके पास 2 सेल है, इसके पास 3 सेल है, इसके पास 4 सेल है, बड़ा कौन होगा? इसके पास 4 सेल है। मतलब जब हम लोग टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो कर सकता है। क्योंकि जब किसी के घर में एक कोठी बढ़ने चला जाएगा तो घर छोटा नहीं होगा, क्या होगा? घर बड़ा होता जाएगा। तो हमको बहुत ईजी है बताना कि एक ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होगा? टॉप टू बॉटम में बढ़ेगा। इसको तो लिखेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेज in a group from top to bottom। from top to bottom ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, यहाँ 2 था, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग क्या देखते हैं कि सब का इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सेम घन से इलेक्ट्रॉन लग रहा है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सबका क्या होगा? सेम होगा। तो एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन and hence they have same chemical properties। ये पीरियड में ऐसा नहीं होता था, पीरियड में सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है, किसी का 1, 2, 3 से लेकर 7, 8 तक। लेकिन यहाँ पर जितने भी हैं एलिमेंट्स उसके ऑटोनॉमस ऑर्बिट में सेम इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सबका वैलेंस 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 होगा और इसीलिए इसके साथ सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे? सेम होंगे। अब
अगर जो है वो ये छोटा है तो ज़्यादा पास है न्यूक्लियस के, यहाँ पे थोड़ा दूर हुआ, यहाँ पे और ज़्यादा दूर हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें आसान होगा, इसके इसमें आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो दूरी के अनुसार क्या होता जाएगा, घटते चला जाएगा। अट्रैक्शन दूरी से घटता है, हम लोग देख चुके हैं ग्रेविटेशनल लॉ में भी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ पे आसान होगा, इसमें, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कम लगेगा इसमें, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा टॉप टू बॉटम। उसको भी लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी decreases in a group from top to bottom, ऊपर से नीचे। अब जब आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। लिखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और इसी को बढ़ने के कर देगा इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसी प्रकार से जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर कहीं ज्यादा होगा, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेज क्या होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मैग्नेटिक क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीजेज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो हमने क्या देखा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसी का उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण केमिकल प्रॉपर्टी जो है सबका एक जैसा होता है, लेकिन उसमें से कोई कम रिएक्टिव कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे एक क्लास में जितने बच्चे हैं उनका सिलेबस एक जैसा, बुक एक जैसा, सारी चीज़ें एक जैसी, लेकिन उसमें से सब जो है सिलेबस सेम होने के बावजूद सबका जो है वो कैटेगरी एक जैसा नहीं होता, कोई बहुत तेज है कोई कम है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा कोई कम होगा, किसके आधार पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के आधार पर, उधर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। उधर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव, इधर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव। तो इस प्रकार से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस प्रकार से साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये सारे कैरेक्टर थे एक ग्रुप में, वो हमने देखा कि ग्रुप में कैसे उसका कैरेक्टर बदलता है। और फिर एक बार याद दिला दूं कि यहाँ पे जो बॉटम में है वो जो लेंथेनाइड्स, लेंथेनम का 57 है एटॉमिक नंबर, उसके आगे 58 से लेके 71 तक जो 40 एलिमेंट है उसको लेंथेनाइड्स बोलते हैं। एक्टिनियम जिसका 89 है, तो एक्टिनियम जैसा मिलता जुलता है जिसका कैरेक्टर 90 से लेकर ऊपर 103 तक, उसको हम लोग जो है सो एक्टिनाइड्स बोलते हैं। वैसे 92 तत्व जो है वो प्रकृति में पाए जाते हैं यूरेनियम तक। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, उसके आगे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका हमने बैंडेड है, आदमी ने बनाया है, रिएक्शन के द्वारा बनाया है लेबोरेटरी में। उसका नाम भी आप देखोगे कि साइंटिस्ट के नाम पर एल्यूमिनियम है, यूरियम है और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो ये थी खूबसूरती मॉडर्न पीरियड टेबल का, जिसने सारे समस्याओं का समाधान कर दिया जो गणित के और शादी में पीरियड टेबल में जो समस्याएं थी उसको यहाँ पे दूर कर दिया गया। और थोड़ा सा अगर ध्यान से देख लिया जाए तो हम एक एक पैटर्न के बारे में पता कर सकते हैं
कि ये ऑटोमेटिक होगा, कौन नॉर्मेटिक होगा, कोई नेगेटिव पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, किसका रिएक्शन कैसे करेगा, ये सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो इसको हमने देखा मॉडल पीरियोडिक टेबल के रूप में। तो ये मॉडल पीरियोडिक टेबल जो है ये समाप्त होता है। हालांकि ये तो बाद में परिमार्जित होकर के अपग्रेड होकर के नई बातें आती हैं और छन करके आते हैं, लेकिन जो शुरुआत करता है उसका कम महत्व नहीं होता है। तो चाहे वो डोबराइनर हो, चाहे वो न्यूलैंड्स हो, चाहे वो मैंने तो बहुत काम किया इसको लेकर के क्लासिफिकेशन के लिए, ताकि हम सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें सब एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल आसानी से, हमें कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। लेकिन अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो चलता है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसी पर हम लोग जो है सो आज चर्चा किए और इसमें से कोई भी परेशानी होगी उसको और आगे देखेंगे। एक और, जैसे किसी का जो दिया हुआ है एटॉमिक नंबर जो है वो 6, तो इसका जो है सो अगर 2 4, तो इसमें 2 सेल हैं तो सेकेंड पीरियड होगा इसका, सेकेंड पीरियड। और अगर 1 और 2 है ग्रुप वही होगा, लेकिन अगर 1 2 से ज़्यादा है तो उसमें 10 जोड़ देंगे, तो ग्रुप कितना हो जाएगा इसका, ग्रुप हो जाएगा 10 + 4 = 14। ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। हम लेते हैं सोडियम, सोडियम का 11 2 8 1, इसमें 3 है सेल 2 8 1, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कहाँ का है, थर्ड पीरियड। और क्योंकि इसमें जो है तो एक ही है, तो 2 से ज़्यादा रहेगा तो 10 जोड़ेंगे, एक तो वही ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा 1। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम 13 2 8 3, ये क्या है, 3 है, और थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड। और फिर ग्रुप कितना हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 10 + 3 = 13 ग्रुप। ये 13वें ग्रुप में है। तो इस प्रकार से कुछ मतलब जबरदस्त हमारे लिए ये कुछ साधन थे जिससे हम किसी भी तत्व के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मॉडल पीरियोडिक हमने देखा, साइंस को भी देखा, बाकी साइंस को भी देखा। इस वीडियो में इतना ही, बस हम आगे दूसरे वीडियो में आपसे